Yo, what's up guys? Welcome back to another game video. तो आज हम today we're gonna game play Minecraft SMP. This is server, but we will say it just kidding. It's SMP. Okay. In this SMP we had kids, and it just who's this? Changing clothes. Here, changing clothes. Yes. Sorry. Even let's make a secret video. I want Mira. लड़का बड़ा था अपनी बहन से ना. हेलो मम्मी. नो पापा. नो पापा.
بہت سارے فرائیڈیز گزر چکے ہیں نا. مائی میلوڈی نئے کپڑے مل گئے. کوئی سیزن آیا ہے لگتا ہے. نہیں یہ مائی میلوڈی. جادو کی جھڑی. ڈبا ہے یار ہے نا. رکھ لیتا ہو. واٹ دی ہیل. یہ کپڑے بھی آ گئے. کرومے کی کپڑے ہیں. کرومے کا ٹیڈی نہیں ہے بہنا. خوش ہو جائے خوش ہو جائے. میرے کپڑے میلوڈی کے نہیں ہے. یہ میلوڈی کے بھی لڑکیوں والے کریکٹر تو اسی کے کپڑے ہیں. کتنے وقت بعد کوئی اچھا مل گیا مجھے سامان. ارے کیا ہے انڈا لوگوں کا کب تک بہنا اپنی ٹیم ہے. یہ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے ٹیم ممبرز ہیں. 9 کے ٹیم ممبرز. یہاں پر کوئی بیگ آپ کو پسند ہے تو بتائیں. یہ والا نیچے کرنا. یہ والا چھوٹے سے کوئی ریموٹ یہ کپڑے ہیں. یہ دے دوں گی. نہیں یہ بھی ہے گول گول منہ. اور کوئی گفٹ نہیں ملا. ارے بھائی ایک میاؤں بھی ہے. وہ چھوٹے ہم لوگ سبسکرائب اور لائک کرنے نہیں آتا بھائیوں. مما ساکس تو کون سی پہنوں آج. چھوڑی فکر نہ کرو. میسج آئے ہوتے ہیں نا تو یہ واٹس ایپ بزنس سے ہی آیا ہے بٹ الگ ہے اس سے. لائک ڈفرینٹ ہے. لائک ان لوگوں کا کوئی نہیں وہ میسج آتے ہیں. اور بھی اسپیشل گفٹ تو نہیں نکلا ابھی تک.
کیا ہاں کیا بولے؟ کوئی بھی اسپیشل ابھی تک نہیں نکلا. ٹرائی ایکسپیریمنٹس آن ہو گئے. یہ دو چیزیں ہم نے ایک سے لے کر آنی ہے. پھر اس لڑکی کو پکڑانی جو وہاں پر ہی ہوتی ہے, یہاں پر ہوتی ہے. پھر اس لڑکی کو پکڑا دینی ہے یہ دو چیزیں, اور پھر اس کے منہ پر یہ والا کر دینے, اور چیک اٹ آؤٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں گائز ابھی تک یہ کیوں نہیں ہوا ریسیپٹ. اور وہ دو چیزیں اور ماں کی وہ مارے یہاں پر مجھے آپ کے لیے بھی ملے ہیں کچھ. یہ دیکھو ٹاڑا. کھانا کھا لے اس کے بعد پھر دکھاؤں گی آخرکار وہ چیز مل گئی جو اتنے وقت سے ڈھونڈ رہے تھے. جانوروں کے علاوہ بھی کچھ دیکھتے تمہیں الگ سے جانا پڑے گا.
معاشرہ جہاں پر عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا. آج تو نے بیٹی پیدا کر کے میری ناک کٹوا دی ہے. تو کیا مار دو اسے؟ اور نالج اور وزڈم پر صرف مردوں کی حکمرانی. علم اور حکمت عورتوں کے بس میں ہوتا تو آج دنیا کچھ اور ہوتی. اور کیا؟ ایسے دور میں ایک عورت علم اور حکمت کے میدان میں ایسا قدم رکھتی ہے. وہ آ گئے. حضرت عائشہ کہ پھر بڑے بڑے عالم اس کے پاس نالج اور وزڈم حاصل کرنے آتے ہیں. اس کے بارے میں صرف وہی آپ کو بتا سکتی ہیں. بہت خوب. ایک ایسی خاتون کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے قرآن کی آیات اترتی ہے. تم نے سنا ساتھ ان کے حق میں آیات اتری ہیں. ہاں میں نے سنا. اور جو ہزاروں احادیث کو بیان کرتی ہے. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. آگے کیا لکھوں اما جان؟ فرسٹ فیمیل اسکالر آف اسلام. ماہر دیکھا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے بننا چاہتا نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا لکھتا تھا حضرت عائشہ کا بیٹا. عائشہ کب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 614 میں عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئی. مبارک ہو ابو بکر. حضرت ابوبکر خدا نے صدیق کی آج بیٹی. تمہیں دوسری بیٹی دی ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی وحی کو نازل ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام دعوت دینا شروع کر دی. محمد نے آج ساری حدیں پار کر دی ہیں. ٹھیک کہتے ہو ابو لہب. اب تک ہم نے اسے نظر انداز کیا ہے لیکن اب اس کی آواز کانوں تک پہنچ چکی ہے. بس اب اور نہیں. انہوں نے بیٹیوں کے لیے کہا تھا کہ میری بیٹیاں بھی ہیں ابو لہب جو اس کا پیچھے پڑ رہے ہیں. ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا. یاسر بولنا اپنی بیوی کو کہ وہ محمد کے خدا کو پکارے. اس وقت اسلام قبول کرنا در حقیقت موت کو گلے لگانا تھا. بلال ہوبل کی قسم آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسلام کا پیغام سنتے ہی 4 لوگوں نے سب سے پہلے پہلے اسلام سن کا لو نا. پیغام قبول کیا. ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. غور سے سنا کرو سوال جو آپ بعد میں کیا کرو. کیا تم نے سنا انہوں نے منکرین زکات کے خلاف اعلان کیا ہے؟ ہاں یہ بات تو پورے عرب میں پھیل چکی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق عرب کے قبیلے قریش اور قریش کے ایک سب ٹرائب بنو تائم سے تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام رومان رضی اللہ عنہا تھا اور ان کا تعلق قریش کے سب ٹرائب کنانا سے تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے 3 بھائی تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر. اور 2 بہنیں تھیں اسماء بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی ایلوکینٹ کمیونیکیشن سکلز میں بہت ایفیشینٹ تھی. وہ اپنی بات کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں کہ سننے والے کو فوراً بات سمجھ آ جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی کوالٹیز اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی، جیسے کہ نالج اینڈ وزڈم. مدینہ کے حالات نازک ہیں. کیا اسامہ کی فوج کو بھیجنا درست ہے؟ ان کی بصیرت ہماری فکروں سے کہیں زیادہ گہری ہے. پیغام آیا اسامہ کو فتح ہوئی ہے. مجھے معلوم تھا. جنراسٹی. بہت شکریہ ان پیسوں کا عامہ جان. آپ کے والد کے بارے میں بھی ایسا ہی سنا ہے. انشیکیبل فیتھ. آپ بھی اپنے والد کی طرح دل کی نرم اور دین میں سخت ہیں. اما جان وہ بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کیونکہ عرب میں قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے قبیلے کی خاطر جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اس لیے ہر شخص اپنے حسب نسب کو بہت پریورٹی دیتا تھا.
और अपने एंसेस्टर्स और लिनिएज को जानने में बहुत इंटरेस्ट लेता था। कितना नहीं है गरम, सही से पकड़ लो, खैर है। को एंसेस्ट्री कितना नहीं है गरम। नस्ब के नॉलेज पर बहुत ग्रिप थी। अरब कबाइल और कुरैश की नस्ब को वो इस कदर जानती थी कि बहुत से लोग कबाइल के नस्ब और खानदानी कनेक्शंस के बारे में उनसे इल्म हासिल करते थे। अम्मा जान, कुरैश और बनी सकीफ का क्या ताल्लुक है? उन्होंने फरमाया कि कुरैश अपनी तिजारत और काबा की हिफाजत की वजह से मशहूर थे। लूट लो इन्हें। हम काबा के मुहाफिज हैं, कुरैश। जाने दो इन्हें। हम काबा की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया। और बनु सकीफ अपने माल और दौलत, ये ताइफ बनु सकीफ का है, इधर इनका ही राज है। खुदा ने इन्हें बहुत नेमतें दी हैं, दौलत, माल, मवेशी, इनाज और रेनी ब्रेड, और जंगजू सिपाही। रेनी ब्रेड किसी ने वहाँ रहा तो उन्होंने ब्रेड फरमाया, सदियों पहले उनमें रिश्ते भी होते थे। और खून खराबा भी। खत्म कर दो इन्हें। उन्होंने फरमाया, उनका नस्ब का इल्म सिर्फ खून का हिसाब नहीं बल्कि तारीख और समाज को समझना है। लेकिन एक ऐसी क्वालिटी जिसने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाकी तमाम लोगों में प्रोमिनेंट किया, वो थी उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सैकड़ों हदीस, आयात और अशयार उनको कैसे याद रहते हैं? वाकई उनकी याददाश्त बेमिसाल है। बचपन में डॉल्स के साथ खेलने के साथ साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को शायरी का भी बहुत शौक था। और जैसे कि हम जानते हैं कि अरब के लोग अपनी जुबान पर बहुत फख्र करते थे। पोएट्री। शायरी तो उनके कल्चर की जान थी। हसन इब्न साबुत की शायरी क्या कमाल की है। वो तलवार है, जुबान की शक्ल में। और ये शायरी ही थी कि जिसके जरिए अरब अपनी तारीफ, दुश्मन की बुराई, लव, इमोशंस, ब्रेवरी सब पोइट्री के जरिए बयान करते थे। यहाँ तक कि पोइट्री कंपटीशंस करवाए जाते। मैंने कई रातें भूख में गुजारी और उसे छीना है ताकि उसके जरिए मैं बेहतरीन रिज़्क हासिल कर सकूं। जो इल्म हासिल करता है वो हिदायत का साथी बन जाता है, मगर जो जहालत में खोया रहता है वो मंजिल के बगैर चलता है। और जो पोइट्री सबसे अच्छी होती उसे काबे की दीवार पर लटका दिया जाता। यूँ समझे कि ये पोइट्री कंपटीशंस उनके लिए ओलंपिक्स गेम्स जैसे होते थे। अरब क्योंकि जुबान को बहुत डीपली समझते थे, यही वजह है कि जब कुरान नाज़िल हुआ, कुरान का स्टाइल इतना एलोकेंट और पावरफुल था कि जो अरब अपनी जुबान, अपनी पोइट्री पर इतना फख्र करते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए। खुदा की कसम, मैंने ऐसे कलमात सुने हैं जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुने। ये ना तो शायरी है ना जादूगरी। ये क्या कह रहे हो? मेरी राय है कि मोहम्मद को तन्हा छोड़ दो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बचपन से ही पोइट्री का बहुत शौक था और अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी की वजह से बड़े बड़े पोइट्स की पोइट्री उन्हें जुबानी याद होती। लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पोइट्री को सिर्फ तारीफ के लिए नहीं बल्कि विजडम और फ्रूटफुल नॉलेज को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी परस्ती नहीं की और ना ही अपने वालिदैन को करते देखा। वो खुद फरमाती है, सही बुखारी में मौजूद है, जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने वालिदैन को दीन इस्लाम पर ही पाया। अरब में ये रिवाज था कि लड़कियों की इंगेजमेंट कम उम्र में ही कर दी जाती और जब लड़की एज ऑफ मेच्योरिटी को क्रॉस करती और बायोलॉजिकली एडल्ट हो जाती तब उसकी रुखसती कर दी जाती। और अरब में मेजॉरिटी केसेस में निकाह कबीलों के इत्तेहाद के लिए किए जाते थे। ऐ फकर के सरदार, मेरी बेटी हिंद को तुम्हारे बेटे कैस के निकाह में देता हूँ ताकि कबीले एक हो जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी इंगेजमेंट बचपन में कबीला बनु नौफल से ताल्लुक रखने वाले मुतअम बिन अदी के बेटे जुबैर बिन अदी से की गई थी। अच्छा गुजरा। मेरा दिल बहुत खुश हुआ है
और ये एंगेजमेंट हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदैन ने इस्लाम कबूल करने से पहले की थी। 619 में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। ये साल आमुल हुज़न है। पहले उनके चचा गुजर गए और अब उनकी बीवी भी। ठीक कहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल हो चुकी थी और घर में बच्चे भी थे और इस्लाम की दावत की जिम्मेदारी भी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिलेटिव्स में से एक औरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि मैच मेकर थी, वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, क्या आप अब निकाह नहीं करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, एक कुंवारी है और एक बेवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी कौन है? पानी क्यों पीना है? दूध पियो। रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, आयशा बिन्त अबी बकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेवा कौन है? सौदा बिन्त ज़ुमा। रसूलुल्लाह चुपचाप पी लो। ने फरमाया, दोनों के बारे में बात करो। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसा ही किया और पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ और 620 में हिजरत मदीना से 2 साल पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ और रुखसती कुछ साल बाद मदीना में हुई। वो पिस्ता सा कलर वाली आंटी को देखो कितना कितने अच्छा अच्छे लगा। कितने अच्छे से कर रही है। हाँ लेकिन मम्मी बेचारे थोड़े से पहले जमाने में तो गाड़ियाँ नहीं होती। क्या बेचारे कैमल कैमल को क्या है? कैमल गाड़ी में होते हैं। शादी के वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, मगर लोग तो कहते हैं उन्होंने इस उम्र की लड़की से शादी क्यों की। अहले अक्ल के लिए ये जान लेना ही काफी है कि अरब में तब तक एक लड़की की रुखसती नहीं की जाती थी जब तक वो बायोलॉजिकली एडल्ट होने के साथ साथ मैच्योर ना हो जाए। मदीना में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के साथ बायोलॉजिकली गुजारी एडल्ट और रसूलुल्लाह मतलब सल्लल्लाहु उसकी अलैहि बॉडी वसल्लम शेप्स की ऐसी हो जाए कि वो अब अज़वाज लड़की लगने हजरत लग जाए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ओ बाद गर्ल हजरत स्टार्टिंग आयशा में बच्ची होती रज़ियल्लाहु है। अन्हा रसूलुल्लाह मतलब सल्लल्लाहु यहाँ अलैहि बच्ची है वसल्लम के गर्ल। सबसे ज्यादा करीब हो जाती है। तुमने देखा वो अपनी बीवियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी बहुत खूबसूरत और मोहब्बत से भरी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में उस जगह से खाते और पीते जहाँ से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाया और पिया होता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ दौड़ लगाते, सफर में अपने साथ लेकर जाते। ये शादी एक आम रिश्ते की तरह नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, लव, ट्रस्ट, एंजॉयमेंट और उधर सुन लो, उधर। से भरी हुई थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को गमगीन कर देता है। 6 हिजरी गज़वा बनील मुस्तलिक कबीला बनील मुस्तलिक के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक बहुत शॉर्ट सी जंग थी। तब कम से नहीं रुको, जब तक वो हुक्म नहीं देते। ये पानी तो सहरा की रातों से भी ठंडा है। मवेशी के पानी जैसा कोई पानी नहीं। पानी में नजर है लोगों पर। हमला, सबको खबरदार करो। हमला।
चलो अच्छे निकले औरतों और बच्चों पे हमला नहीं कर सकते इसने भी कर दिया उसने बोल दो इस्लामी घोड़ा जो के है ना लोगों वो को वाइट वाइट कैदी बना दिया जाता है। इन कैदियों में कबीले के सरदार हारिस बिन अबी दरार की बेटी जवेरिया बिनते अल हारिस भी होती हैं, जिनसे बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लेते हैं। इसी निकाह के नतीजे में बहुत से कैदी आजाद कर दिए जाते हैं और बाद में पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेता है। हम सब आप पर ईमान लाते हैं, हम सब इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इसी गज़वा से वापसी पर एक वाक़या पेश आता है। ग़ज़वा मुस्तलिक़ की वापसी पर एक स्टे के दौरान आराम से हज़रत आयशा का हौदज ज़मीन पर रखा गया और हज़रत आयशा नेचुरल नीड के लिए दूर चली गई और इस दौरान उनका नेकलेस गिर गया। जब वो वापस आई और बैठने लगी तो महसूस किया कि नेकलेस उनके पास नहीं, तो फौरन उसकी तलाश में निकल पड़ी। हौदज उठाने वालों ने प्राइवेसी की वजह से बगैर देखे हौदज उठा लिया और काफिला रवाना हो गया। उनको लगा कि उधर बैठ गई देख नहीं सकते थे ना, पहले अलाउ नहीं होता था, सिर्फ पैरों के बाद से उन्होंने गैस कर दिया कि आके बैठ गई। फीमेल बेटे ऐसे साथ ही फेरी होती थी, नबियों की बीवियां थी, बहुत पर्दा होता था उनका। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस आई तो काफिला जा चुका था, तो उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया ताकि अगर कोई वापस उनकी तलाश में आए तो उन्हें वहीं मौजूद पाए। चूंकि अरब के सफर और काफिलों की पुरानी रवायत थी कि जब भी कोई कारवान सफर करता था तो उसके साथ बहुत से मुहाफिज होते थे। हिफाजत करने वाले। पीछे से ऊँटों का ध्यान रखो। उनमें से एक शख्स को रियर गार्ड या कारवान वॉचमैन बनाया जाता, यानी उस शख्स को सबसे आखिर में आने की ड्यूटी दी जाती ताकि अगर काफिले का कोई पर्सन, कोई सामान, कोई जानवर पीछे रह जाए तो उसे साथ ले। गज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर काफिले का रियर गार्ड हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया गया। जब सुबह हुई और हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु उसी जगह पहुंचे जहां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ऊँटनी बैठाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँटनी पर सवार हुई और हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी को पकड़कर काफिले की तरफ ले गए। काफिलों के सफर के दौरान इस तरह का वाकया हो जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं, लेकिन मुनाफिकीन ने इसी बात को बुनियाद बनाकर एक झूठा वाकया कर लिया। क्या तुमने सुना ग़ज़वा बनी मुस्तलिक की वापसी का माजरा? कहते हैं कि वो पीछे रह गई थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल ने इसे गलत रंग देकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाया। मैंने सुना है कि आयशा पीछे रह गई थी और उसके साथ एक जवान फौजी था और वो अगली सुबह ही काफिले से मिली। इल्जाम लगा रहे हैं, देखो नबियों की बेटियों और बीवियों में भी इल्जाम लगा देते थे लोग कि वो अच्छी नहीं। उनकी बीवी होकर उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। पूरी रात गायब रही। देखे मदीना में घरों और महफिलों में 4:11 पे ना बजे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो गई। टेंशन से कोई अब ऐसे कहेगा तो सब कह रहे थे ना उस जमाने में बड़ी बात थी। ये ज़ाफ़रान नहीं खा यम्मी होता है।